إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حاضرین جمعہ میرے دینی ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہماری تخلیق فرمائی اور تخلیق کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و کرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ان تمام نبیوں پر درود و سلام کی بارشیں ہوں، اللہم صلی علیہم وبارک علیہم۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر تمام انسانیت کو حکم دیتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لیکن یہاں پہ ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، یہاں قضا کا معنی حکم کے معنی میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی توحید عبادت کے بعد کسی اور چیزوں کا تذکرہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد والدین کا تذکرہ کیا کہ اگر میرے بعد کسی کا حق ہے تو تمہارے والدین ہیں۔ ایک بات یہاں پہ ہے، ایک سوال ابھر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے بعد والدین کا جو ذکر کیا ہے، ان دونوں کے بیچ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے؟ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو یک بعد ذکر کرتے ہیں، سیریل وائز ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اپنی وحدانیت کے بعد والدین کا ذکر کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا ربط ہے، کیا کنیکشن ہے؟ اس کے اندر ربط جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ ربط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، تو انسان کی تخلیق کا جو سبب حقیقی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا، مطلب یہ ہوا کہ سبب حقیقی ہماری تخلیق کا جو ذریعہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں، ہمارا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، لیکن سبب ظاہری انسان ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدائش کا ان کی ماں کو ذریعہ بنایا ہے، گویا کہ سبب ظاہری ان کی ماں ہوئی۔ تو ایک ربط جو سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے توحید عبادت کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ سبب حقیقی، اور دوسرا جو ذریعہ بنایا ان کی پیدائش کا وہ کیا ہے؟ سبب ظاہری۔ دوسرا ربط کیا ہے؟ دوسرا ربط یہ ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو غلط چیزوں کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اوامر کا حکم دیتا ہے اور نواہی سے روکتا ہے، اسی طریقے سے والدین بھی اپنے بچوں کو صحیح راستوں کی جانب حکم دیتے ہیں اور غلط راہوں سے روکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جس طریقے سے اپنے بندوں کو غلط اور صحیح چیزوں کی تمیز کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے والدین بھی حکم دیتا ہے۔ تیسرا ربط جو ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، تیسرا ربط وہ یہ ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر انعامات، احسانات اور نوازشات کی بارشیں کرتا ہے، لیکن اس کے عوض میں کوئی چیز مانگتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والدین اپنے بچوں پر اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بہا دیتے ہیں، ان کے اوپر نعمتوں کی بارشیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے کوئی بھی اس کے عوض میں مانگتے نہیں۔ تو یہ ربط ہے۔ چوتھا ربط کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا؟ چوتھا ربط یہ ہے کہ بندے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں لیکن اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اسی طریقے سے والدین، بچے 1000 غلطیاں کریں لیکن والدین اس کی غلطیوں پر ان کو معاف کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی صبر کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس وجہ سے معلوم ہو گیا کہ ان کے درمیان کیا ربط ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا سورہ لقمان کے اندر کہ تم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کس وجہ پر؟ اللہ رب العالمین نے ان کی عقلی دلیل بھی پیش کی اور ان کی وجہ بھی بیان کر دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ
कुरहन, उनकी माँ ने वहमलतहु उम्मुहु कुरहन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमको अपने पेट के अंदर तकलीफ से रखा। एक वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबब बयान कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कि तुम्हारे वालिदैन का एहसान क्या है। पहले गौर करो तुम्हारी माँ की कुर्बानियों, तुम्हारी माँ की कुर्बानियां क्या है। हमलतहु उम्मुहु, तुम्हारी माँ ने तुमको उठा के रखा। हमला का माना होता है उठा के रखा, और किस तरीके से रखा अल्लाह ताला ने उसके बारे में भी कहा। कुरहन, तकलीफ से रखा, खुशी से नहीं रखा था। एक इंसान अगर इस मोबाइल को अगर 10 मिनट रख ले तो इंसान के दर्द, हाथ के अंदर जान बाकी नहीं रहती। तुम्हारी माँ ने तुमको अपने पेट के अंदर 9 महीने रखा था, और ना जाने कितनी तकलीफें उन्होंने सही। रात की नींदें और बच्चा होने की वजह से वो कमजोर होती चली गई, और तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने तक रखा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों और तुम्हारे दिलों को झिंझोड़ रहा है। तो तुम याद करो कि तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने रखा, और 9 महीने रखने के बाद अल्लाह ने दूसरी वजह बयान कर रहा है, ववज़अतहु कुरहा, और जब तुम्हारी पैदाइश और तुम पेट के अंदर जब तुम्हारी नशो नुमा के 9 महीने हुए तो फिर तुम्हारी माँ ने तकलीफ से जना तुमको। वज़अतहु कुरहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर यहाँ कुरहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे दोस्तों, औरतें जब बच्चों को जनती है तो यूं ही नहीं जन देती, मौत और जिंदगी के कशमकश में होती है। अपनी आंखों से मौत को देखती है कि हाय क्या हो गया, बच्चे की पैदाइश नहीं होती। बाज़ औक़ात तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी की जानिब इशारा किया और कहा कि वज़अतहु कुरहा, तुम्हारी माँ ने तकलीफ से जना है तुमको। लेकिन फिर भी वो इनकार नहीं करती। अगर अपनी बात और बच्चे की बात आ जाए तो कहती है कि मेरी फिक्र ना करो, पहले बच्चे को बचाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ का दिल और माँ की ममता ये होती है। फिर बच्चे की पैदाइश हो जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र कर रहा है, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा, पैदाइश के बाद तुम्हारी माँ लगातार 2 साल तक दूध पिलाती है, फिर तुम्हें अपने बाहों से लगा लेती है। तुम्हारे जिस्म के अंदर एक एक कतरा, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक एक खून उनकी नवाजिशात हैं। तुम्हारे अंदर जो तवानाई है, तुम्हारे अंदर जो ताकत है, ये वालिदैन के खून का जरिया है। तुम्हारी माँ ने तुमको 2 साल तक दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद जब तुम्हारी परवरिश हुई, जब तुम दुनिया के अंदर आने के बाद ऐसे ही नहीं तुम नशोनुमा पा गए, ऐसे ही तुम्हारी नशोनुमा और बढ़ोतरी हो गई, बल्कि वो खुद गीले कपड़ों पर सोती थी और तुमको सूखे कपड़ों पर सुलाती थी। न जाने तुम कितने रोते थे, रात की नींदें हराम हो जाती थी वालिदैन की। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 वजह बयान किया कि तुम्हारी माँ ने तुमको पेट के अंदर तकलीफ से रखा, फिर तकलीफ से जना, और जनने के बाद अपने सीने से तुमको खून की शक्ल में वो खून दूध की शक्ल में तुमको पिलाया, और 2 साल तक पिलाया। उलमा कहते हैं कि अगर उस दूध की मिक़दार को अगर नापा जाए तो एक तालाब के बराबर हो सकता है जो तुम्हारी माँ ने पिलाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, तो गोया कि मालूम हुआ कि बाप से दर्जा, माँ का जो दर्जा है बाप से 3 गुना है। माँ का मकाम 3 गुना है, और हदीस से साबित हो जाती है। राज हदीस अबू हुरैरा है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, मना हक़ुन्नासी बिहुस्नि सहाबती, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा करीब कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मुका, तुम्हारी माँ। क़ाल मन या रसूल अल्लाह? क़ाल उम्मुका। क़ाल मन? क़ाल उम्मुका। आपने 3 मरतबा कहा, और कुरान ने 3 मरतबा उनकी तकालीफ का तज़किरा किया है। फिर उसने कहा, क़ाल मन या रसूल अल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाल अबूका, तुम्हारा बाप। 3 कुर्बानियों और 3 मौत की मनाजिल तय करने के बाद बाप के सुपुर्द वो लड़का होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर
वालिदैन की कुर्बानी और माँ का मकाम को तज़किरा किया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर औ अहदुहुमा औ किलाहुमा। अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा, तो तुम उसे उफ तक न कहना, तुम उसे झिंझोड़ना नहीं, तुम किसी बातों पे इनकार न करना। आप गौर करें, कुरान के फलसफे को गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहदुहुमा का तज़किरा किया है, बाद में दो किलाहुमा का तज़किरा किया है, यानी दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं। पहले होना क्या चाहिए था, औ किलाहुमा, दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, बाद होना चाहिए था अहदुहुमा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले अहदुहुमा का तज़किरा किया है। इस बुनियाद पे, इस बुनियाद पे, क्योंकि जब वालिदैन जवान अपनी जवानी की दहलीज पे होते हैं, उस वक्त किसी की बातों पे इतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि जब उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो उस वक्त तुम्हारे ऊपर ज्यादा लाजिम है कि तुम उनके साथ इकराम और इज्जत और इज्जो इंकिसारी के साथ पेश आओ। क्यों? क्योंकि जब दोनों में से कोई एक, अगर कोई माँ बाप में से कोई दुनिया से चला जाए और उनमें से एक बाकी रहे और बीवी की तरफ से तकलीफें आती है, औलाद की जाने से तकलीफें आती है, वालिदैन का दिल कलेजा मुंह तक चला आता है, तकलीफें होती है। अब उसके पास उनका साथी बाकी नहीं है, वो अपना दर्द अपने साथी के सामने बयान करके अपना दिल हल्का कर सके, उस वक्त ज्यादा तकलीफें होती है। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अहदुहुमा, अगर उनमें से कोई एक पहले बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा लाजिम है कि तुम उनके साथ इज्जो इंकिसारी और एहतराम और इज्जत के साथ उनके सामने पेश आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फला तकुल लहुमा उफ, तुम्हारा लहजा किस तरीके से होना चाहिए, तुम उसे उफ तक न कहना, उफ तक न कहना। कोई बात अगर कह दे, उफ का माना हूं, कोई बात कह दे, हाँ आपके लिए सामान लाए, पैसा नहीं हमारे पास, कोई बात वालिदैन कह दे, हाँ बिल्कुल चेहरा बिगाड़ कर दे, उफ तक न कहना उन्हें। अगर वालिदैन किसी चीज के लेने या किसी चीज के मांगने का इजहार करे तो वो चीज उनके सामने पेश कर दो या उनके सामने सबब बयान करो। इस तरीके से अपने चेहरे को ना बनाओ, उससे तकलीफें होती हैं। वालिदैन समझते हैं कि मैं बोझ बन चुका हूं अपने बेटों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा गाली तो दूर की बात, उफ तक ना कहना। वला तनहरहुमा, और तुम ना उसे झिंझोड़ना, ना किसी बात पे उसे डांटना डपटना उन्हें, बल्कि वकुल लहुमा कौलन करीमा, तुम्हारी बातों का जो अंदाज हो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, तुम उनके सामने बड़े ही मारूफ तरीके से बात करना। उलमा ने कौलन करीमा का मतलब बयान किया है। इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह जो ताबीई हैं, उनके सामने ये पेश किया गया कि कौल करीम का माना क्या है, तो उन्होंने बयान किया कि एक गुलाम जिसको कोई गलती हो जाए और गलती होने के बाद अपने आका के सामने कोई बात रखे, और आका भी इस कदर बदमिजाज और पुरशरूह हो, तो वो आका के सामने वो गुलाम किस तरीके से बातें करेगा, डर डर के बात करेगा, डर डर के बात करेगा, और उनकी बातों के अंदर नरमी होगी। यह है कौलन करीमा। वालिदैन के सामने बिल्कुल झुक करके बात करो, ऐसा नहीं कि जबान के अंदर तलखी हो, जबान जहरीली हो जाए और उनके सामने कोई भी अल्फाज निकाल दें। तो उलमा ने कहा कौलन करीमा, कुरान करीम के अंदर 3 कौल का तज़किरा है, कौलन सदीदा और कौल हुस्ना और कौलन करीमा। कौल सदीद कहते हैं कि उनका माना सही हो लेकिन उनका लफ्ज अलग हो। जैसे कोई शख्स किसी को कह दे कि तुम अपनी माँ को कोई कह दे कि तुम मेरे बाप की बीवी हो, माँ बिगड़ जाएगी। हालांकि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था उनको, लेकिन माना तो सही है लेकिन उनका लफ्ज गलत है, बोलने का तरीका गलत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौलन सदीदा की तलकीन की है कुरान करीम के अंदर
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा। तो इसका माना है कि जिसका माना तो सही हो लेकिन लफ्ज अलग हो। कौल हुस्ना का माना है कि लफ्ज माना दोनों सही हो, कि किसी से हम जब बात करते हैं क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, कि तुम जब किसी से बात करो तो बेहतर तरीके से बात करो, यानी माना भी सही हो और उनका लफ्ज भी सही हो। लेकिन कौल करीम का माना जो मैंने अभी बयान किया, तो वालिदैन के सामने बिल्कुल इज्जो इनकिसारी झुक करके बातें करो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। फिर अल्लाह ताला ने कहा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल। ये बात करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंदाज सिखाया। फिर जब तुम उनके सामने खड़े हो तुम्हारी कैफियत क्या होनी चाहिए? वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। और जब तुम उनके सामने जब खड़े हो तो तुम्हारे दोनों बाजू सिमटे हुए हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ परिंदे के बाजुओं से तशबीह दी है। जब एक परिंदा आसमान को उड़ता है तो अपने बाजुओं को फैला लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परिंदों की जानिब इशारा किया और कहा अफलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुना इल्ला रहमान। क्या तुम परिंदों की जानिब नहीं देखते कि जब वो हवाओं में उड़ते हैं तो अपने परों को फैला लेते हैं? तो गोया कि जब परिंदा आसमान की बुलंदियों में उड़ता है तो अपने परों को फैला लेता है, लेकिन जब जमीन में उतरने को आता है तो अपने दोनों बाजुओं को समेट लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के फलसफे को गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान अपने वालिदैन के सामने उनकी क्या कैफियत होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन परिंदों से तशबीह दे रहा है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि जब तुम उनके सामने खड़े हो तो तुम्हारी जो हालत होनी चाहिए वो इज्जत इनकिसारी की होनी चाहिए। उनके सामने बिल्कुल आजिज़ी व इनकिसारी के साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारे हरकत सकनात और कौल गुफ्तार में तकब्बुर की बू नहीं आनी चाहिए। और बात करने के बाद तुम्हारे दिल की क्या कैफियत हो? मिनर रहमा, तुम्हारे दिल के अंदर रहम होनी चाहिए। वालिदैन के सिलसिले में तुम्हारी क्या हो? दिल के अंदर रहम हो। जब उनसे बातें करो तो तुम्हारे कौल गुफ्तार और तुम्हारे अज़हान क़ुलूब से रहमत की बू आनी चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर सिखाया कि मेरे बंदो वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। और तुम दुआएं क्या करो अपने वालिदैन के बारे में, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ऐ मौला करीम तू उस पर उसी तरीके से रहमत की बारिशें नाजिल कर जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। मेरे प्यारे दोस्तों, एक वालिदैन की बड़ी कुर्बानी होती है बचपन में। बाप के सामने बेटा बार बार कहता है, एक वाक़या तज़किरा किया जाता है। एक दरख्त की शाख पर एक कौवा बैठा हुआ था। बार बार बच्चा पूछता है बाप ये क्या है? बाप कहता है बेटा कौवा है। कहता है बाप फिर ये क्या है? कौवा है। फिर कहता है ये क्या है? कौवा है। फिर कहता है कौवा है ला दूं। ये वालिदैन का कौल गुफ्तार है अपने बेटों के साथ। फिर जब वही औलाद बड़ी हो जाती है और एक बूढ़े वालिदैन अपने बच्चों के सामने कहते हैं कि बेटा चाय चाहिए। कहता अच्छा अच्छा कोई बात नहीं ला रही है। तो बेटा फिर ताखिर हो जाती है तो कहते बेटा चाय चाहिए। कहा ला रही। फिर जरा सी ताखिर होती है, बूढ़ा बाप बोलता है चाय अब तक आई नहीं। फिर औलाद की ज़बान से वो तुर्श रूह और वो बू आने लगती है। इंतजार नहीं कर सकते 2 मिनट के लिए, अभी तो ला रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, बचपन में किस तरीके से कौवे के बारे में तुम्हारे वालिदैन ने बार बार कहा कि कौवा है ला दूं, खिलौने ला दूं। क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? आज तुम्हें चाय के लिए मांग रहे हैं। तुम्हारी जबान के अंदर कीचड़ आ जा रहा है, तुम्हारी जबान के अंदर बू आ रही है। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वालिदैन की कुर्बानियों को तुम याद नहीं कर सकते कि बचपन में उन्होंने किस तरीके से उन्होंने तुम्हारे ऊपर शफ़क़त का साया फैलाए रखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उश्कुर ली, इस बुनियाद पर तुम मेरा भी शुक्रिया अदा करो। वलिवालिदैका, और इन कुर्बानियों को देखकर अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। सबसे ज्यादा अगर हुस्न सुलूक के कोई मुस्तहिक हैं तो तुम्हारे वालिदैन हैं। इसलिए कहा और याद रहे वइलैयल मसीर, अगर तुमने जरा भी कोताही की वालिदैन के सिलसिले में, इलैयल मसीर, मेरी ही जानिब तुम्हारा लौटना है। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर बनी इसराइल की आखिरी आयत में कहा वरब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है तुम्हारे दिलों को कि वालिदैन की जो तुम खिदमत कर रहे हो तो दिखावे के लिए या रियाकारी के लिए। बाज लोग होते हैं
اپنے والدین کو اپنی جانب رکھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہیں, دنیا والوں کو دکھاتے ہیں دیکھو میں نے والدین کی پرورش میں کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کی جانب بھی اشارہ کیا اور ذہن صاف کر دیا کہ اگر تمہارے دل کے اندر ذرا بھی نفاق ہے اور ریاکاری ہے تو جان لینا اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. والدین کے سلسلے میں جو حسن سلوک ہو, وہ اخلاص ہو, جس طریقے سے بچپن میں تمہیں اخلاصیت اور اللہیت کے ساتھ ان کو پالا تھا, تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اور کہا اگر کسی طریقے سے اپنے والدین کو تم نے غلط الفاظ یا غصے میں یا جذبات ہو کر کوئی کہہ دیا ہو تو اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو, ورنہ پھر کل قیامت کے دن تم کو جہنم میں ٹھوس دوں گا. میرے پیارے دوستو, آپ غور کریں ان آیات پہ, اللہ رب العالمین نے کیا حکمت کی باتیں بتائی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دعائیں سکھائی اور کہا کہ دعا کرو رب اغفر لی ولوالدی, اے اللہ تو مجھ پر بھی رحم فرما اور میرے والدین پر بھی رحم فرما. تو جو والدین کی جو اخلاقی صفات ہیں وہ 3 چیزیں آ گئی کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کی اطاعت کرو اور والدین کے لیے دعائیں کرو. 5 جگانہ نمازوں کے اندر اہتمام کرو اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی, اے اللہ تو اس پر اسی طریقے سے تمام مصائب کو ہٹا دے جس طریقے سے ہماری ادنا سے تکلیف پر بچپن میں انہیں تکلیفیں ہوتی تھی, اور نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے گھر کی وہ چوکڑیاں بھرتے تھے, نہ جانے کتنے چکر کاٹتے تھے. اے اللہ آج اس کے جسم سے تمام مصائب کو, تمام قسم کی تکلیفوں کو دور فرما دے. میرے پیارے دوستو, اگر کوئی شخص والدین کی حسن سلوک میں کوتاہی کرتا ہے اور والدین کی باتیں نہیں مانتا تو قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ وعید بھی آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اتنا کچھ جاننے کے بعد, اتنی تکالیف اور اس قدر قربانیوں کے بعد, ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرنے کے بعد, اتنا کچھ جاننے کے بعد اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اس کی خدمت کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور ان کو تکلیفیں دیتا ہے, تو یاد رہے اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین, اللہ رب العالمین 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے, ایک ظلم کی سزا اور دوسری والدین کے ساتھ نافرمانی کی سزا. اتنا بڑا ظلم ہے یہ والدین کے ساتھ, والدین کو تکلیفیں دینا, والدین کو ستانا اتنی بڑی تکلیفیں ہیں کہ انسان کی تکلیفیں اور ان کی گناہوں کی سزا دنیا ہی چلی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہیں تو آخرت میں سزا دوں گا ہی, لیکن جان لے کہ دنیا کے اندر بھی تمہاری سزا یہیں سے شروع ہے, اور اس کی دلیل موجود ہے. میرے پیارے دوستوں, ان کی دلیل بھی موجود ہے. ایک صحابی رسول ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خبر معلوم ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ علقمہ کے پاس اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا. صحابی رسول آتے ہیں اور ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں, لیکن علقمہ کی زبان سے وہ لفظ و کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے. بار بار کوشش کرتے ہیں, جاری نہیں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خبر آتی ہے, کہتے ہیں کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ کہاں ان کی ماں زندہ ہے. کہا کہ جاؤ ان سے سبب پوچھو کیا وجہ ہے کہ علقمہ کے زبان سے آج کلمہ توحید جاری نہیں ہو رہا ہے. میرے پیارے دوستو, آتے ہیں, ان کی ماں بتلاتی ہے ہاں ان سے مجھے ناگواری ہے, وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, اپنی بیوی کی باتیں زیادہ سنتا ہے, اس لیے ان کی زبان سے آج کلمہ توحید جاری نہیں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے معاف کر دو. پھر بھی ان کی ماں تیار نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو ان کے اندر ڈال دو. چنانچہ ماں کی ممتا ابھر آتی ہے, ماں کی ممتا جوش مارتی, کہتا نہیں ایسا نہ کرو, میں اپنے بیٹے کو میں معاف کرتی ہوں. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہے. صحابہ کرام جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ علقمہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جاری ہیں. میرے پیارے دوستو, والدین کے ساتھ ناگوار سلوک, ان کے ساتھ ناروا سلوک کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے تمہاری موت ہوگی تو کتوں جیسی موت ہوگی. اور اگر والدین اگر صحیح کام کے لیے بھی بلائے اور ایک بندہ انکار کر دے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین
उसके ऊपर कुछ गलत कर देता है। एक वाकया है सही बुखारी के अंदर, जुरैज का वाकया। जुरैज का वाकया यूं है कि ये बनी इसराइल का बड़ा ही आबिद शख्स था। उनकी माँ आती है, कहती है बेटा, वो तो बेटे को किसी काम के लिए बुलाती है, लेकिन जुरैज सजदे की हालत में थे। अब उन्हें नागवार मालूम होता है कि सजदे की हालत में मैं कैसे अपनी माँ को जवाब दूं। उनकी माँ आती है, वो जवाब नहीं देते, माँ पलट के चली जाती है। दूसरे दिन आती है माँ, फिर बुलाती है जुरैज, कोई जवाब नहीं देते हैं, फिर वो पलट के चली जाती है। फिर दोबारा आती है, तीसरे दिन आती है, फिर पलट के चली जाती है। वही मामला उनके साथ होता है। तीसरे दिन उन्होंने बददुआ कर दी जुरैज के ऊपर कि अल्लाह, जुरैज की मौत ना हो जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल मजालिम के अंदर इस हदीस को लाए हैं। चुनांचे क्या होता है, ऐसे तो बनी इसराइल के जो लोग थे जुरैज के ऊपर पहले ही हसद कर रहे थे कि ये इबादत और पारसाई में इतना ऊंचे मकाम पर है, किसी तरीके से उनके मुकाबिल हम कर नहीं सकते। तो उस कबीले में, बनी इसराइल के कबीले में एक बड़ी खूबसूरत अबकार औरत रहती थी और बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने बुलाया, कहा कि तुम जुरैज को अपने फितने में डालो। वो आती है और आने के बाद उसको दावत गुनाह देती है कि आओ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लो। लेकिन जुरैज अपने मुंह को मोड़ लेते हैं और उस चीज से इनकार कर देते हैं। वो जोश में थी, जाकर किसी चरवाहे से अपनी ख्वाहिश पूरी करती है और उससे कुछ दिनों के बाद वो हमल में रह जाती है। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बेटा होता है। आने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, फिर ये बेटा कहाँ से? कहा कि इसका बाप फलां शख्स है, जुरैज है। चुनांचे बनी इसराइल के लोग बड़े गुस्साते हैं और गुस्साने के बाद आकर उनकी कलीसिया को तोड़ देते हैं, उसकी इबादत खाने को तोड़ देते हैं और कहते हैं बड़ी पारसाई दिखाते हो, तुमने ये घिनौना काम क्या बड़ी पारसाई दिखा रहे हो। चुनांचे जब हम मजबूर हो जाते हैं तो कहते हैं मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। नमाज पढ़ने के बाद वो आने के बाद उस बच्चे को कहते हैं बता, ए बेटे बता, ए बच्चा बोल तेरा बाप कौन है। चुनांचे वो तमाम तफसीलात को बयान कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वाक्य को गौर करें और देखें कि अगर वालिदैन अगर किसी काम के लिए भी बुलाएं या किसी चीज को कहें और अगर औलाद सिर्फ इनकार कर दे, उस चीज को वो झिझोड़ दे या उफ तक कहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज से नाराज हो जाता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वालिदैन की रजामंदी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी है। अगर वालिदैन को तुम खुश रख रहे हो तो गोया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश रख रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप गौर करें इन आयात की रोशनी में, इन वाकयात से अपने आप को सबक लें और गौर करें कि वालिदैन की किस तरीके से अहमियत है। और अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है तो किस तरीके से वो सजा का मुर्तकिब हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन की बातें मानता है और अगर मान लेता है उस चीज को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तमाम उमूर को कामयाब फरमाता है, उनकी तमाम दुआएं को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। एक मशहूर वाकया है और अक्सर ये वाकया आप लोग सुने होंगे, ये भी सही बुखारी के अंदर है। वो बनी इसराइल के 3 नौजवान थे और किसी सफर के अंदर जा रहे थे। पहाड़ी इलाका था, मूसलाधार बारिशें होने लगी। बारिशें होने के बाद उन्होंने कहा कि किसी गार के दहाने पर हम अपनी पनाह लेते हैं। जैसे 3 नौजवान अंदर गए तो अचानक एक पत्थर लुढ़कता हुआ आया और उस गार के मुंह पर बंद हो गया। अब तीनों ने रास्ता निकाली, क्या करें, इतना बड़ा पत्थर आकर के पहाड़ के दहाने पर है, अब क्या किया जाए। चुनांचे तीनों ने कहा अब निजात का कोई जरिया नहीं सिवाय उस नेक अमाल के जो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस नियत और यकीन के साथ किया है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। आज हम तीनों अपने नेक अमाल को बयान करते हैं और रखते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकत से इस गार के मुंह का जो पत्थर है वो हटा दे। तीनों ने अपनी अपनी फरियादें और नेक अमाल को जिक्र किया। उनमें से एक नौजवान था, उन्होंने कहा ए अल्लाह तू जानता है कि मेरे बूढ़े वालिदैन थे और जब वो बूढ़े हो गए तो मैं बकरियां चराया करता था। चराने के बाद मैं आता था तो मेरा ये मामूल था कि मैं अपने बच्चों को पिलाने से पहले, अपने बाल बच्चों को देने से पहले मैं वो दूध अपने वालिदैन के सामने पेश करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं आया तो मेरी बकरियों की खातिर मुझे ताखीर हो गई। अल्लाह जब आया तो आने के बाद ये हुआ कि मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैं आया तो देखा मेरे वालिदैन सो रहे हैं। मेरे दिल ने यह गवारा नहीं किया कि मैं अपने वालिदैन को जगाऊं
मैं अपने वालिदैन के बेदार करूं। चुनांच मेरे बच्चे इधर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं भूख की वजह से, और इधर वालिदैन सो रहे हैं। वालिदैन को अगर जगाऊं तो बेअदबी होगी। ए अल्लाह, इस हालत में वो सुबह हो जाती है, मैं वो दूध का प्याला लेकर पूरी रात उनके सिरहाने पे खड़ा रहा कि कोई बदबी ना, कोई बेअदबी ना हो जाए। ए अल्लाह, अगर ये अमाल तेरे खालिस नियत से अगर किया था कि अल्लाह तो इस पत्थर को इस मुंह से हटा दे। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे क्या मालूम हुआ? अगर कोई शख्स वालिदैन की इताअत गुजारी करता है, वालिदैन की बातें मानता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, उनको उनकी मुसीबतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन टाल देता है। अब गौर करें इस वाक़ये से। लेकिन आज समाज का क्या हाल है? समाज का हाल क्या है? हर शख्स वालिदैन के साथ बेअदबी कर रहा है। अगर वालिदैन किसी चीज की तलब या मुतालबा कर दे तो औलाद के ऊपर पहाड़ जैसी परेशानी आ जाती है ना। अरे कुछ दे भी नहीं सकते तो उनके साथ एक तो अच्छी तरीके से तो बात कर लो। किस तरीके से वालिदैन के साथ बात की जाए, किस तरीके से आप उनके सामने खड़ा होया जाए, किस तरीके से अपने दिल को नरम किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये औलाद के अंदर ये सिफात नहीं आते तो यकीनन आप मान लें कि कल क़यामत के दिन हमारा दोज़ख के अलावा कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज्यादा अपने हुकूक के बाद वालिदैन के हुकूक को तज़किरा किया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी हुकूक को उस वक्त बयान करता है जब उसकी अहमियत ज्यादा होती है। और अगर इन हुकूक के बाद अगर कोई वालिदैन के साथ नारवा सलूक करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे उस बंदे को माफ फरमाएगा? आप गौर कर सकते हैं। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनकी मुसीबतें और उनकी तकलीफें और उनका सजा दुनिया ही से चालू हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि वालिदैन के सामने जब बात हो तो उनके सामने एहतराम के साथ बात करें, उनके सामने खड़े हों तो तवाज़ु के साथ खड़े हों, उनके ताल्लुक से अपने दिल को मोम जैसा रखें, उनके सामने उनके तई अपने दिल को पत्थर दिल न बना के रखें, बल्कि दुआएं करें पांचों वक्त। ए अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, हर वक्त दुआएं करें, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दुआएं करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि मौला करीम हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमा। ए मौला करीम, जिनके वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, जिनके वालिदैन ज़ईफ हैं, तो उस पर अपना रहम व करम अता फरमा। ए मौला करीम, हम में जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। ए मौला करीम, हम में से जो मकरूज हैं, जो कर्ज से लदे हुए हैं, अल्लाह उसे कर्ज की अदायगी का कोई सबील अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला व अजल्लु व अतम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।